कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये सब प्रभुपाद वहां पे पत्र में लिखे है। आगे रखते हैं प्रभुपाद जी, यदि इन कार्यों में तनिक भी आलस बरता जाता है, थोड़ी भी ढिलाई अगर रहती है, तो आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। जो इन बातों का कठोरता से पालन नहीं करता, उसका पतन निश्चित है। कई मंदिरों हमारे विश्व से यहाँ जो कोट है, इसको बड़े फ्लेक्स बैनर में भी लगा, जैसे पंढरपुर धाम में हम देखे थे। अभी तो काफी कुछ परिवर्तन हुआ है वहां मंदिर में, परंतु ये कोट कई आश्रम में भी इसको लगाया जाता है। 16 गुड राउंड्स करके ये कोट है फेमस, अभी रामप्रभु को जो लिखा गया पत्र, जिसमें प्रभुपाद की जो अंतिम 2 वाक्य है कि आध्यात्मिक जिनका प्रश्न ही नहीं। परसों जब मैं कह रहा था तो प्रश्न पूछा कि कई बार अगर ये मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे उसके बाद भी कभी देखा जाए कि अपेक्षित उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं देखी जाती है, मतलब एक तो कोई सेवा भाव नहीं देखा जाता है, कहा गया था, या फिर कभी कभी उनसे भी गलतियां होती हुई दिखाई देती है। तो उस प्रश्न और मैं जब चर्चा कर रहा था अनेक से वरिष्ठ वैष्णव से, उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त को सिद्धि काल कहा गया है। सिद्धि काल का अर्थ होता है कि इस समय जो साधन करते हैं और साधन करते समय जो संकल्प बनता है वो सिद्ध भी होने लगता है। तो परिणाम क्या होता है कि यदि किसी का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में साधन कर रहा है, परंतु साथ में उसके जीवन में महत कृपा न हो, गुरु की कृपा न हो, गुरु कृपा प्राप्त होती विशुद्ध से गुरु की सेवा आदि करने से। तो गुरु सेवा यदि ना, क्योंकि गुरु सेवा जैसे हम श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद का हम चर्चा सुन रहे थे परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज जी से, तब उन्होंने इस बात को बताया था। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में श्रीधर स्वामी की टीका में इस बात को बताया गया। 7वां स्कंद का प्रमुख विषय है ऊति। ऊति को अंग्रेजी में कहा जाता है इम्पेटस, मतलब वासना जिसे कहा जाता है। तो भगवत अनुकूल वासना कैसे बनती है, भगवत प्रतिकूल वासना कैसे बनती है। तो वहां पर विशुद्ध से इस बात को स्पष्ट किया गया कि भगवत अनुकूल वासना बनती है महत कृपा के द्वारा। जब गुरु की वैष्णव की कृपा होती है, जब गुरु वैष्णव का हृदय आह्लादित होता है हमारी साधना से, तो उसका परिणाम होता है कि हमारे अंदर भगवत अनुकूल वासना जागृत होने लगती है। और ठीक इसके विपरीत जब गुरु साधु का अनादर हो जाता है तो भगवत प्रतिकूल वासना आने लगती है। उस दिन मैंने इस बात को ऐसे जब चर्चा कर रहा था किसी वक्त से, तो मैंने कहा कि हम जो अभी वर्तमान में जो साधना कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम जो कहा जाता है, हमारी साधना का ये विशेषता नहीं कि हमारी साधना के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि हमारे श्रीमान यहाँ पर गोवर्धन रिट्रीट के वक्त भी शायद उपस्थित हो, तो हमारे श्रीमान सच्चिदानंद इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि जो देहात्म बुद्धि में जो होता है, देहात्म बुद्धि में रहने वाले जीव के द्वारा समस्त जो भगवत कार्य की आध्यात्मिक क्रिया की जाती है किसके समान है, तो राख में घी डालने के समान है। सनातन गोस्वामी शब्द कहा जाए तो देहात्म बुद्धि में जो होता है उसकी वह मतलब सच्चिदानंद घन जो भगवान है वह उन क्रियाओं को स्वीकार नहीं करते जब तक देहात्म बुद्धि से मुक्त ना हो। तो हमारी जो भी भक्ति क्रियाएं चल रही है, हम जो साधना कर रहे हैं, जो भी श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति का पालन कर रहे हैं, प्रमुख रूप से गुरु आचार्य श्रील प्रभुपाद परंपरा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें इस तरह से यह अनुमोदित किया है, श्रील प्रभुपाद का आदेश है। तो श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए अगर हम इस कार्य करते हैं तो यह कार्य फिर हमारे अंदर भगवत अनुकूल वासना लाता है। अन्यथा कई लोग अगर साधन करें परंतु साथ में सेवा न हो, दोनों अगर साथ में न हो,
तो क्योंकि सेवा नहीं है तो सेवा नहीं है तो वास्तविक वैष्णव गुरु की कृपा नहीं है। तो ऐसी साधन करने से क्या दो परिणाम हो सकते हैं। एक परिणाम होता है कि अहम आ जाता है, और दूसरा परिणाम होता है कि कभी कभी वासनाओं की पूर्ति होने लगती है। ये तो बताया, ऊपर से मैं सुन रहा था तो मुझे आश्चर्य लगा कि मैंने कहा कि मॉर्निंग प्रोग्राम अगर स्ट्रांग है फिर भी अगर गलती कैसे हो सकती है, कोई गलत कैसे कर सकता है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर साथ में महत कृपा नहीं है तो फिर उनकी जो अंदर कुछ भौतिक जो इच्छाएं थी, वो इच्छा लेकर थे बैठे थे वहां, तो वह इच्छाओं को भी, क्योंकि सिद्धि काल है तो सिद्धि काल के कारण तुरंत उसका भी कभी कभी फल दिखाई देता है। अन्य पत्र और एक है 2 अप्रैल 1975 का, हमने जो कहा, जिसमें भी प्रभुपाद पुनः इसी वाक्य को लिखे जो आखिर में जो हमने हाईलाइट किया है, आध्यात्मिक जीवन का कोई सवाल ही नहीं है। तो एक तरह से ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है इसको फाउंडेशन भी कहा जाता है, या ब्रह्म मुहूर्त को इसे आध्यात्मिक जीवन का प्राण आधार कहा जाता है। महत कृपा, गुरु कृपा जो है वह हमारे अंदर भगवान की भक्ति की, भगवान की सेवा की इच्छा को लाती है। शुद्ध जब अन्न लिया जाता है तो वह सुदृढ़ संकल्प को लाता है। कई बार देखा जाता है कुछ भक्त सुनते तो है परंतु अनुभव होता है कि सुबह कभी कभी कहते प्रभु जी हम उठ नहीं पाए सुबह जल्दी। कारण क्या है? तो उसका कारण एक तो है कि पूरा पिछला दिन जो चेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही है, जिसके वास्तविक हम प्रातः काल जब उठ जाते हैं, प्रातः काल उठना, भगवान का मंगला दर्शन करना, ये हमारे किसी व्यक्तिगत पुरुषार्थ के फल स्वरूप नहीं प्राप्त होता है कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे वास्तविक कहा जाता है। बहुत सुंदर बात बताया कि अगर आप मंगला दर्शन में खड़े हैं भगवान के, मतलब भगवान ने चुना है आपको। हम अपने बल पर भगवान के सामने नहीं पहुंचे, भगवान ने चुना है कि विशिष्ट जीव आज मेरे सामने खड़े होने चाहिए। तो कहा जाता है कि यदि कोई त्रुटि होती तो विशेष रूप से एक बात बताई कि अन्न दोष एक बताया जाता है। यदि आप कहीं भी कुछ भी खाते हैं, आप अगर स्ट्रांगली इसको फॉलो नहीं करते, अन्न दोष का जो मतलब कहीं बाहर भी खा लेना, कुछ भी खा लेना, सही भाव में न लेना, सही समय पर न लेना, अगर ये होता है तो उसका प्रभाव होता है कि अगर अन्न दोष आता है तो अगले दिन आपकी आंख नहीं खुलेगी, भक्त बता रहे थे। और मॉर्निंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ में कौन सा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया था 16 गुड राउंड्स, कि बहुत अच्छा साधना में होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत आवश्यक क्या है, एक तो मैंने कहा कि हम जब श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करते तो हमें कृपा प्राप्त होती है प्रभुपाद की और परंपरा की, जिसके द्वारा हमारे अंदर भगवान की भक्ति की अनुकूल इच्छाएं जागृत होने लगती है। जब हम पवित्र प्रसाद अच्छे भावना से लेते हैं तो फिर संकल्प दृढ़ होता है, सहज स्वाभाविक हमें अधिक प्रातःकाल जल्दी उठने का, अधिक नाम जप करने का। जैसे चैतन्य महाप्रभु तो विषय अन्न खाई ले दुष्ट हईले मन, दुष्ट मन की सिर हो कृष्ण स्मरण। ये अन्न यदि दूषित हो जाता है तो तुरंत संकल्प आपका नहीं रहता पाता। और वहां पर बताया गया कि जब साथ में नियमित रूप से शास्त्र अध्ययन किया जाता है, शास्त्रों का अध्ययन मतलब प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत का पढ़ना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन। मुझे आज भी स्मरण है, लगभग 18 वर्ष पूर्व कह सकते, जब मैं गुरु महाराज की सेवा में भी था, और उस समय मुझे अवसर प्राप्त हुआ था परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज जी के साथ में रहने का। तो ये जो उदाहरण मैं कई बार बतलाता भी हूँ। तो उस समय हम वृंदावन में थे, मैं और सुंदर चैतन्य महाराज जी थे। गुरु महाराज उस समय यूएस में थे। श्रील प्रभुपाद का 108वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, गणोत्सव, व्यास पूजा। तो उस समय मैं उनके साथ में रहता था, तो मैं काफी समय, बहुत अधिक समय सुनने की आदत थी मुझे। विश्व से मैं परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी कुछ कथाओं को सुनता था। तो वे जब देखे तो उन्होंने एक बात वहां पर कही थी जो मुझे सदैव मेरे तो अंकित हो गई हृदय में। वो बोले कि तुम बहुत काफी सुनते रहते हो। मैंने कहा हाँ प्रभु जी, उस समय मतलब प्रभु जी थे। तो हाँ सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आवश्यक है स्वयं भागवतम को लेकर तुम अध्ययन करो। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारी चित्त में सात्विकता नहीं आ सकती। मतलब जो बहिर्मुख वृत्ति जो विश्व से आजकल देखा जा रहा है, हालांकि
हम ऑनलाइन और यह सब टेक्नोलॉजी का लाभ ले रहे हैं, परंतु बहुत अधिक जो यूट्यूब पर काफी लोग सर्च करते रहते हैं, यूट्यूब पर ही बहुत अधिक सुनने, तो उससे और खुद अगर अध्ययन न करें, सो आई ऑलवेज से दैट हियरिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग, कि आप स्वयं जब तक भागवत को न पढ़ते, तो उन्होंने ये बात कही थी तब तक सतोगुण नहीं रहेगा, तो ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक उन्होंने कहा कि सतोगुण रहना चाहिए। तो वो बात मुझे स्मरण है। तो अगर हम 3 चीज करते हैं, मतलब ये शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, साथ में शिल प्रभुपाद के आंदोलन की सेवा कर रहे हैं, ये दोनों मिलाकर जब मौनी प्रोग्राम करते हैं, तो फिर 16 गुड राउंड जो हम कहें उसका हम लाभ कर पाते हैं। तो गुरु कृपा इच्छा को जागृत करती है, अन्न पवित्र अन्न जो संकल्प को जागृत करता है, और अध्ययन जो है सत्वगुण और विवेक बुद्धि को जागृत करता है, सेवा साक्षात्कार को जागृत करती है, और ब्रह्म मुहूर्त जो है वह तीव्रता को जागृत करता है। जो सुनते हैं तीव्रेन भक्ति योगे ना, जो इंटेंसिटी चाहिए, जो तीव्रता चाहिए, वो तीव्रता आती है विशुद्ध से ब्रह्म मुहूर्त साधना के द्वारा। शिल प्रभुपाद का और एक पत्र 9 नवंबर 1975 में सुखदेव प्रभु को लिखे, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए आपको इन भक्तों को इसके महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए। तो ये पूरा कोट था, मैंने केवल शॉर्ट में लिखा। तो मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब प्रभुपाद उसमें लिखते कि 4 बजे उठना, फिर मंगला आरती, नाम जप करना। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझाइए भक्तों को, अन्यथा वे फिर से माया के बहकावे में आ जाएंगे। सोर्स ऑफ एंथुजियाज्म, उत्साह, भक्ति सेवा के सिद्धांत, इसके पहले ऐसे श्रील प्रभुपाद लिखे इसी पत्र में, रूप गोस्वामी के द्वारा ये अनुमोदित प्रणाली है, प्रभुपाद स्पष्ट रूप से वहां दे रहे हैं। भक्ति सेवा के सिद्धांत हमें हमेशा उत्साही बनाकर माया के हमले से बचाने के लिए है। यदि हम इन सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं तो हम हमेशा उत्साही बने रहेंगे। ये स्रोत है और कृष्ण की सेवा करने के हमारे उत्साह को बनाए रखने वाले। जैसे कोई नियमित रूप से उनका पालन नहीं कर रहा है, यह निश्चित हो सकता है कि उसका उत्साह धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अब देखते कई बार कुछ वक्त बार कहते हुए, प्रभु जी उत्साह कैसे आएगा, उत्साह कैसे आएगा। तो मुझे आज भी स्मरण है, मैं विश्व से जब गुरु महाराज के सेवा में था, कई बार हमारे अंदर एक भावना थी कि हमको कुछ ट्रेनिंग मिलना चाहिए, गुरु महाराज जी हमको कुछ अलग जगह भेजिए ट्रेनिंग के लिए, हम कुछ रिट्रीट भी करना चाहते हैं। तो विशेष रूप से गुरु महाराज ये वाक्य कई बार बतलाए भी थे। महाराज कहते कि विशेष रूप से शिला प्रभुपाद के समय में सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कौन सी थी, बोले शिला प्रभुपाद के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग थी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम। यही सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग का भाग वहां पर कहा गया। और जो इसको करता है, सहज स्वाभाविक उसके जीवन में उत्साह और चैतन्यता बनी रहती है। और जैसे हम किसी वक्त से हम वरिष्ठ कुछ भक्तों में चर्चा हो रही, तब हमने कहा था कि विश्व से गुरु महाराज जी के द्वारा जो जूम जपा जब से प्रारंभ हुआ है, एक तरह से सभी भक्तों के लिए पिछले 3 वर्षों में बहुत स्ट्रांग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बन चुका है। भक्त बहुत अधिक आध्यात्मिक रूप में सशक्त हुए हैं और उनकी प्रगति बहुत हुई है, प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त हो रहा है, उनका पोषण बहुत अधिक हो रहा है। क्योंकि 2 बातें होती है, एक होता है पोषण और दूसरा होता है प्रेरणा। आप नियमित जो साथ, ऐसा नहीं होता कि आप 7 दिन भोजन नहीं करेंगे और एक दिन एक साथ पूरा भोजन कर लेंगे, 7 दिन भोजन करना पड़ता है ना। तो एक वाक्य मुझे अच्छा लगा जब मैं भक्त से चर्चा कर रहा था कि रेगुलर स्टडी जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, जो नियमित आध्यात्मिक जो साधन होता है, वो हमारा पोषण होता है। और उसके साथ में फिर जैसे हम रिट्रीट्स जो करते हैं, जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन में कभी गुलाब जामुन भी मिल जाता है, कभी सलाद भी मिलता है, जो और अधिक उसको आस्वाद्य बना देता है। तो वैसे ही रिट्रीट आस्वाद्य हो जाता है जिसका साधना नियमित हो, एक तरह से वो अधिक उसको लाभ प्राप्त हो सकता है इन सभी के द्वारा। आगे शिल प्रभुपाद यशोमती नंदन प्रभु को जो पत्र लिखे थे, दिस इज आवर स्ट्रेंथ, हमें सावधान रहना होगा हम दूसरों की तरफ पतित न हो जाए। प्रभुपाद विश्व से इस पत्र के प्रारंभ में लिख रहे हैं कि कई अन्य जो आंदोलन है, कई आध्यात्मिक पंथ है जो केवल बाहरी रूप से रह गए हैं, परंतु उनका भी स्वयं का अभ्यास उतना सुदृढ़ नहीं रहा है। तो हमारी ताकत निर्भर करती है इन सिद्धांतों कठोरता से पालन करने और आवश्यक 16 माला नियमित रूप से जप करने पर। रेवती नंदन स्वामी को पत्र लिखे, उसमें कहते हैं
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना जारी रखें और अपने प्रचार क्षेत्र में मेरे अन्य सभी शिष्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। दो बातें बता रखिए, सभी को आपको प्रोत्साहित करना है। इन नियामक सिद्धांत मतलब प्रभुपाद डेली जो मॉर्निंग एक्टिविटीज वहां पे अंग्रेजी में लिखा था, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही कोई नियामक सिद्धांत तो कट्टर पालन को बंद कर देता है तो स्टॉन्चली, तो उसके आध्यात्मिक जीवन में बाधा आती है और एक मौका है कि वो कभी भी माया का शिकार हो सकता है। जयतीर्थ को जो पत्र लिखे थे, इसको हम जैसे पढ़े थे कि अगर वह थोड़ी ढिलाई रखता है तो फिर वह स्वयं यहाँ कहते हैं कि वह स्वयं ही आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ेगा। स्वयं मतलब ऑटोमेटिक प्रोग्रेस। अगर इसमें भाग लेता है, मतलब मौन में भाग लेता है, तो भले ही पहले कितना ही पाप किया होगा, परंतु उसकी ऑटोमेटिक प्रोग्रेस प्रारंभ हो जाती है। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। विश्व से एक वक्त कह रहे थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते, शिल प्रभुपाद ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। शिल प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड दिया है ना, हालांकि कई, मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था, कई आध्यात्मिक पंथ है विश्व से। वृंदावन में आप देखेंगे कई संत है, कई साधु है, यहाँ तक कि क्या कहा जाए गौड़ी मठ है, सभी है। परंतु एक, मैं किसी एक संत से मिला था विश्व से, इस्कॉन के नहीं थे, मतलब अन्य किस पंथ के थे, परंतु उन्होंने एक विशेष बात ये बहुत कही कि मैंने कहा कि आजकल बहुत कथाएं चल रही है, बहुत अलग अलग बाबा है, संत है, सभी यूट्यूब पर वायरल होते जा रहा है। तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि आप कहाँ से, मैंने कहा मैं इस्कॉन से हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बात ध्यान रखिए, श्रील प्रभुपाद ने जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है वो किसी भी पंथ में नहीं है। वाक्य में कि अभी जितने भी अन्य पंथ है के अधिकांश देखा है, कई बार इस्कॉन के भक्त ही उसका लाभ ले पा रहे हैं। बाकी कई साधु संत बातें बहुत सी कहते होंगे, परंतु जिनका फाउंडेशन शिल प्रभुपाद के आश्रय लेके स्ट्रांग बना है, वो ही इन बातों को समझ सकते हैं। अन्य जितने भी पंथों की जो शिक्षाएं हैं उसको मतलब धारण कर पाते हैं। तो प्रभुपाद ने जो प्रोग्राम दिया वो कहे कि, वो बहुत सुंदर बात बताई उन्होंने कि शिल प्रभुपाद ने जो कलयुग के जीवों के लिए एकदम ऐसा सिस्टमैटिक प्रोग्राम बना के रखा है कि इसमें केवल अपने आप को रखता है तो ये जो वाक्य बढ़ रहा है, यह सरल प्रक्रिया है। तो वहां पर कह रहे थे वो कि वास्तविक सतयुग आदि में जो ऋषि मुनि होते थे, हम कल्पना नहीं कर सकते, जो ऋषि मुनि जो पर्वत आदि पर जाकर, वन में जाकर हजारों वर्ष तपस्या करते थे, हजारों वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त होता था, उन्होंने कहा वो फल शिल प्रभुपाद जी जो इस्कॉन में प्रोग्राम बना है उसके द्वारा प्राप्त हो रहा है। मतलब लगभग जैसे हमारे गौरामपुर का इलेक्शन सुन बोल रहे कि जो इस्कॉन में रहते, जो केवल मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, चार नेपाल कर रहे हैं, समझ लेना चाहिए सतयुग के जीव है। ये वाक्य उन्होंने कहा था कि क्योंकि साधारण कलयुग में आप देखेंगे इस तरह का सात्विक जीवन शैली जिसकी ना, वो प्रातःकाल उठ ही नहीं सकता है और नियमित साधन कर ही नहीं पाएंगे, तो अन्यथा वे महिला कंचन और कामिनी के शिकार हो जाएंगे, प्रभुपाद कह रहे हैं। कोई लोग काफी शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु यदि ग्रंथ साधना अच्छी तरह से प्रातःकाल की न करे, उसके विषय में प्रभुपाद कह रहे हैं दयानंद प्रभु को, मेरी पुस्तकों को पढ़ने से आपको मदद मिलेगी। प्रभुपाद ने कहा दर्शन अवश्य होगा, लेकिन यदि आप सभी मंदिर के मामलों में भाग लेकर, जैसे जल्दी उठना, मंगला आरती में भाग लेना, भक्ति सेवा करना, दर्शन को लागू नहीं करते हैं, तो केवल दर्शन सीखना होगा, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। मराठी में कहते कळतं पण वळत नहीं। तो मतलब सुना तो है सब कुछ, परंतु केवल वो किताबी ज्ञान रह जाता है, उसकी अनुभूति नहीं हो पाती। तो जैसे हमने परसों भी कहा था कि जितने भी भक्ति के अंग है, उस सभी भक्ति के अंग का अनुभव, अनुभूति और साक्षात्कार होता है जब आपका प्रातःकाल का फाउंडेशन अच्छा हो। कोई भी इमारत बिना फाउंडेशन के रहती नहीं, तो भक्ति का कोई भी अंग आपको अनुभव नहीं दिलवाता है, व्यवहारिक अनुभव में। कि अगर आप लेट उठते हैं कभी, तो आप देखेंगे कि उस दिन आप जो भी चीज करेंगे ना, उसमें यू विल नॉट हैव द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, उसमें आध्यात्मिक चेतना भावना वैसी नहीं रहती है। करंदर प्रभु को जो पत्र लिखे हैं, यदि वे चूक गए तो वे विचलित हो जाएंगे। मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम में भाग अवश्य ले, अन्यथा प्रभुपाद का काफी यह कर्मियों की तरह साधारण आवासीय क्वार्टर रहेगा। जैसे बाहर जैसे लोग रहते हैं, ऑफिस की तरह आए सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे, मतलब सेवा नहीं रहेंगे, वो काम ही रह जाएगा।
रुद्रदास और राधिका देवीदास जी को पत्र लिखा है 1972 20 फरवरी को। आपको देखना चाहिए कि हमारा जल्दी उठना वगैरह वगैरह आदि सबसे उच्चतम स्तर पर चलते रहे। उनको मतलब एक सेंटर की जिम्मेदारी की तो वहां के उस क्षेत्र के लिए कह रहे हैं कि अभी ध्यान रखिए कि स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल के होने चाहिए और कभी भी किसी भी कारण से उपेक्षित ना हो। इस तरह आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन अगर हम एक पल के लिए अपने नियमित काम की उपेक्षा करते हैं, अगर हम अपने नियमित कार्यक्रम को सुस्त होने देते हैं, तो हम जो कुछ भी प्रयास करते हैं सब असफल हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फेलियर, प्रभुपाद कहते हैं वहां पर। ये प्रभुपाद की ये एवरीथिंग विल फेलियर जो है ये कई कोट्स में आया है। मैंने कुछ एक दो ही गिन के रखे। बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की रीढ़, आध्यात्मिक जीवन की। इसलिए यदि नियमित रूप से 16 माला जप करने और दैनिक आरती और कीर्तन करना जैसी चीजों को ईमानदारी से पालन किया जाता है तो लोग स्वाभाविक रूप से आपके ओर आकर्षित होने लगेंगे और हमारे उपदेश मतलब हमारे प्रचार का प्रभाव होगा। जो मैंने परसों भी कहा कि कुछ वक्त विषयों में आप इस्कॉन में भी देखे होंगे, कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम को प्रोत्साहित किया। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में है, पुना का नाम कहा जाता है, या लगभग सभी मंदिरों में धीरे धीरे इसको डेवलप किया जा रहा है। पहले एक समय था 25 साल पहले सभी जगह एक स्टैंडर्ड, अब लगभग सभी मंदिरों में इसको काफी स्ट्रांगली फॉलो किया जा रहा है। तो प्रभाव क्या देखते हैं कि वहां पर प्रीचिंग बहुत अच्छा होता है, प्रचार बहुत बढ़ता है। और दूसरी बात प्रभुपाद का मंदिर का व्यवस्थापन बहुत आसान हो जाएगा। एक जगह प्रभुपाद का एक मैनेजमेंट का एक कोट है, उसमें प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज द मैनेजमेंट, कि जस्ट सी दैट, कि यही देखना कि सभी जितने भक्त हैं वो उनका मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छी तरह हो रहा है। और अन्यत्र भी एक वाक्य हम पढ़ रहे थे विशुद्ध से कांग्रीगेशन प्रीचिंग डेवलपमेंट के अंतर्गत, कि कांग्रीगेशन प्रीचिंग जो है कैसे डेवलप होता है। तो कहते हैं कि सिर्फ उनको नियमित रूप से प्रातः काल साधना में अच्छी तरह आप लगा देते हैं। आप अगर वीकली क्लास में उनको बुला रहे परंतु उनकी साधना पर ध्यान न दे तो आप देखेंगे कि वो उतने सुदृढ़ नहीं बन पाते। जो केवल वीक संडे इवनिंग्स में आते होंगे, संडे प्रोग्राम में, वो उतने स्ट्रांग नहीं बनते। जैसे हमारे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का प्रसिद्ध वक्तव्य, उसमें वो कहते हैं विश्व से जब हनुमान जी लंका में गए थे और लंका में जब वो सब असुरों के बीच में, राक्षसों के बीच में वो सीता मैया खोज रहे थे, अचानक ब्रह्म मुहूर्त का काल था। ब्रह्म मुहूर्त के काल में क्या देखा उन्होंने कि एक स्थान से राम जी के नाम के कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पहले मन में विचार आया कि ये हो न हो कोई राक्षसी माया है, रावण ने मुझे विचलित करने के लिए रखी है। परंतु अगले क्षण उन्होंने मन में विचार किया कि प्रातः काल में माया नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कोई, तो जो रविवार एक सत्संग में आते हैं, जो उत्सव फेस्टिवल्स में आते हैं, उनको कहा जा सकता है कि शो बॉटल डिवोटीज रहते हैं, या मतलब केवल बाहरी उनका वेशभूषा, परंतु आवश्यक नहीं कि अंदर का भी सब्सटेंस उतना स्ट्रांग हो। परंतु प्रातः काल जो भक्त आना शुरू करते हैं तो हम देखे हैं कि उनका स्पिरिचुअल सब्सटेंस बहुत स्ट्रांग रहता है। ऋषभ देव प्रभु का पत्र है, को पत्र लिखा 1970 में। यदि नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है तो माया के खतरनाक प्रभाव का कोई मौका नहीं है। माया हमेशा झांकती रहती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, माया हमेशा ही देखती रहती है हमारे, मतलब कांस्टेंट सीसी कैमरा लगा है ना, माया की नजर हमेशा है। वह भक्ति के किसी भी स्तर से हमारी किसी भी गलती का फायदा उठाने के लिए तैयार है, तो मौका ही देख रही है सिर्फ। इसलिए प्रभुपाद क्या सॉल्यूशन दिए, सभी को निरंतर जब अध्ययन, सेवा या प्रचार में लगे रहना चाहिए। यह पूरा कार्यक्रम आपको अन्य कहीं उलझने से, मतलब it will save you from any other engagements, उलझना एंगेजमेंट था इंग्लिश में। क्या माया और कृष्ण हमेशा साथ साथ है, या तो कृष्ण की सेवा कर रहा है या वह माया की सेवा कर रहा है। तो इस तरह के जो कोट्स हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो मैंने विचार किया था कि मैं कुछ प्रश्नों के लिए समय रखूंगा, परंतु तो उसमें कैसे, पहली बात तो है कि वी शुड बी स्ट्रांगली कन्विंस्ड कि यह जो मॉर्निंग प्रोग्राम है अति आवश्यक है, ये आध्यात्मिक जीवन का प्राण है, तो मुझे करना ही है। उसके लिए दूसरी आवश्यक बात है कि चाहे वह ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, अंततः सभी को उस जीवन के अंतिम क्षण के लिए तैयारी करनी है। तो हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तात्पर्य में कहते हैं कि समस्या क्या है,
और अल्पायु प्रायण अल्पायुष जब लिखा गया है तो वहां पर वे कहते हैं कि समस्या आयु कम होने क्या है, बिकॉज ऑफ इररेगुलेटेड स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। तो ब्रह्म मुहूर्त की साधना बहुत अच्छी तरह से कराएं तो उसके लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है। तो पहली बात है कही गई कि आपकी सात्विक जीवन शैली होनी चाहिए। सात्विक जीवन शैली में एक बात महत्व रखनी चाहिए, प्रयास किया जाए, पूरी कोशिश की जाए कि दिन में न सोए कभी। हमारे को बताए अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी तरह साधना करना है तो दिन में सोना मतलब एक तरह से वहां पर कहा कि जो दिन में सोता है वास्तविक उससे कभी भाव भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। एक भक्त ने कहा था एक एक होता है पावर नैप, समझ आता है ना। पावर नैप मतलब थोड़ा आप शरीर को विश्राम देते हैं, मान लीजिए 5-10 मिनट कोई शवासन आदि करके, परंतु बहुत मतलब 1-2 घंटे आप बिल्कुल पर्दे लगाकर कंबल ओढ़कर एसी में, उस तरह का एकदम मॉस्किटो नेट हमारे भक्त लगा देते हैं, वैसा नहीं सोना है। कुछ समय के लिए थोड़ा शरीर को थोड़ा विश्राम दिया सकते हैं, परंतु बहुत ऐसी गहरी नींद नहीं होनी चाहिए दिन में वहां पर। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रातः काल जल्दी उठे पूरा दिन नहीं सोते तो उसका परिणाम क्या होगा, आप रात्रि में आपको जल्दी सोने की आदत पड़ जाएगी। पहली बात ये कहा गया वहां पे। दूसरा एक बताया गया है कि जब आप सोते हैं, सोने का समय जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जल्दी तब तक व्यक्ति उठ नहीं सकता जब तक जल्दी सोने का अभ्यास न बनाए। तो इसलिए जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जो भी बिजनेस है, जॉब है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं वन शुड मोल्ड हिज लाइफ इन सच अ वे। तो विश्व से जो प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते सभी को एक तरह से तैयारी करनी। ऐसा नहीं कि जीवन के अंत में जब यमराज जाएंगे तब आप कहेंगे कि अरे मैं तो गृहस्थ हूं तो मैं उतनी तैयारी नहीं कर पाया। एग्जाम की प्रिपरेशन सभी को समान रूप से करनी होगी, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ब्रह्मचारी सन्यासी या गृहस्थ हो। तो इसीलिए ये प्रातःकालीन उठना तब तक नहीं हो सकता जब तक जल्दी सोने की आदत ना हो। साथ में और एक महत्वपूर्ण बात है कि साउंड डीप स्लीप कहा गया है। कैसे होंगी? पहली बात दिन में नींद ना हो। दूसरी बात वहां पर कही गई साउंड डीप स्लीप के लिए कि सोने का जो समय मान लीजिए आप 9 बजे या एट द मोस्ट वैसे 10 कहा गया, मैक्स 9 या 10 के बीच में अगर आप सोते हैं तो सबसे आवश्यक है कम से कम 2 घंटे पहले आपको संसार से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं एक समय जब श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु जी से मार्गदर्शन ले रहा था तो उन्होंने भी कहा था बहुत ज्यादा मैनेजरियल चीजें जो है रात्रि के समय नहीं होनी चाहिए। जो ऑफिस के भी काम होते, पहले एक समय था कि जब मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट्स नहीं थे, ऑफिस ऑफिस में रहता था, घर घर में रहता था। अभी क्या हुआ कि आखिरी सांस तक, बिल्कुल सोने के समय तक जो है ऑफिस चलते रहता है। तो वहां पर एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले ऑफिस बंद होना चाहिए आपका, जो भी ऑफिस या बिजनेस, सोने से। क्योंकि फिजिकल स्लीप से पहले ज्यादा जरूरी मेंटल स्लीप। हम आखिरी क्षण तक माइंड को इतना हाइपर एक्टिव रखते हैं कि शरीर फिर सो ही नहीं पाता है, क्योंकि माइंड बहुत हाइपर एक्टिव है। तो हाँ, पहली बात बताई कि कम से कम 2 घंटे पहले उसको रोक दिया जाए। और दूसरी बात कही गई कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसको कहते हैं मीडिया कंटेंट्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, अच्छा तो हो कि ये ना हो। जो बहुत अधिक देखता है उनको वैश्व से ये शब्द थोड़ा कटु लगे, परंतु रस अनुभूति जो है, नाम जप में जो रस है, हम इसको ऐसे, जब हमने जो हरिनाम चिंतामणि सेमिनार में इस बात की चर्चा की थी एक समय, जब हम कहे थे उदासीनता का प्रमुख कारण है कि बहुत अधिक हम बहिर्मुख हो जाते हैं इन सभी क्रियाओं के द्वारा। तो वहां पर बता कि एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को मिनिमम 1-1.5 घंटे पहले छोड़ना चाहिए। फिर कुछ वक्त कहे कि इसे रात्रि में सोने पहले कीर्तन आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे कृष्णा बुक रीडिंग कहते हैं। तो मेंटली आपको शांत, अपने मन को शांत करना जरूरी है। और फिर ये संकल्प भी साथ में कि मुझे प्रातःकाल उठना है, यह बतलाया गया है। और या ओके, सॉरी, आई जस्ट अगेन वेंट बियॉन्ड द टाइम। ठीक है पद्मा। वैसे आपने सारे वास्तविक या व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर दे ही दिए, यू एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल, लेकिन फिर भी कुछ वक्त है ही हैंड रेस किए हैं, तो देखते हैं। अर्चना भक्ति माता जी। अनम्यूट करके बोलिए माता जी, अनम्यूट करना होगा पहले। प्रभु जी अनम्यूट किया है, सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है।
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू। ये आपने जो क्लास दिया बहुत वंडरफुल क्लास था, इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। मुझे मेरा सवाल ये था प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि बच्चों को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में यही संस्कार देना चाहिए कि उनको जल्दी उठाए और वो भी सारे प्रोग्राम्स करे, बट ये कौन से एज से शुरू होना चाहिए? यहाँ पे कुछ सीनियर ग्रस्त भक्त इस पे ज्यादा गाइड कर सकते हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने कहा नहीं कि बच्चों को उठाना है आपको हम खुद ही अच्छा उठ जाए वो आवश्यक है, ये अच्छा वाक्य तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। बच्चों को बेशक से, जब मैंने जो सुना है, जैसे चिल्ड्रन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, फोर्स के द्वारा। विश्व से अभी वर्तमान में कहा जाता है बच्चों को फोर्स करते हैं, सो यू विल ब्रेक देम, यू विल नॉट मेक देम, कहा जाता है। तो उनको आग्रह न किया जाए, परंतु माता घर में अगर वातावरण वैसा बनता है, घर में सभी ऐसे जल्दी उठने लगते हैं, सभी लोग साधना करते हैं, तो स्वाभाविक बच्चे भी उस संस्कार को फॉलो करते हैं। तो और उनको नेचुरली, जैसे वो उन पर फोर्स न किया जाए, लालयत पंचवर्षानि दशवर्षानि ताड़यत, जो कहा जाता है कि पहले 5 वर्ष में उनको लालन पालन किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको कुछ डिसिप्लिन लाइफ बताया जाता है। पर प्रारंभ से ही थोड़ा थोड़ा उनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ डोंट ट्राई टू ब्रेक देम। ये मेरा एक, और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था, जैसे प्रभु जी मॉर्निंग प्रोग्राम में जनरली हम मंगल आरती पहले करते हैं और फिर चैंटिंग करते हैं, तो ऑपोजिट भी हो सकता है क्या? जैसे यू डू लाइक द 16 राउंड्स, और जितना भी दिन के राउंड्स आपने सोच रखे वो पहले करे और फिर मंगल आरती करेगा, इज दैट ओके? और इसमें मैं कह सकता हूँ कि आप एक यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ जनरल बातें कही जा रही है, उसके साथ में एक आवश्यक होना चाहिए आपके व्यक्तिगत जीवन का ऑब्जर्वेशन करने वाला कोई आपका मार्गदर्शक हो, जिसको हम काउंसलर कहते हैं, या शिक्षा गुरु होता है या मेंटर होते हैं। वे आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता सकते हैं आपकी लाइफ सिचुएशंस देखकर कि जनरली हाँ जब पहले करना है कि मंगला आरती पहले करना है। तो गृहस्थों में ये चीज होती है कि आगे पीछे हुआ जा सकता है कि वो फैमिली के अनुसार या फिर कुछ चीजें रहती। तो पर्सनली आप उसको किसी और जो आपके क्लोज जो भक्त है, जो आपको जानते हो, ये मेरा एक राय है इसमें। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। सहस्त्रबाहु प्रभु झांसी से अनम्यूट करके बोलिए। सहस्त्रबाहु प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आवाज आ रही? हाँ हाँ जी जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि ऐसे मतलब कभी मंगला आरती जाने मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या वो मतलब प्रोग्राम घर पे अटेंड कर सकते हैं? ऐसे मंगला आरती और गुरु पूजा, संध्या आरती, यदि घर का माहौल वैसा बना हुआ है तो इसमें मतलब कोई वैष्णव सेवा ना हो रही तो मतलब इसमें क्या है? ये विश्व से 2 स्टैंडर्ड से, एक होता है कि आश्रम लाइफ स्टैंडर्ड कहा जाता है, एक गृहस्थों का लाइफ स्टैंडर्ड होता है। तो आश्रम के लिए आवश्यक है कि वो पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और विश्व से जो गृहस्थ है, गृहस्थों को 2 प्रकार का अनुमोदन है। एक है कि उन्होंने भी प्रयास करना चाहिए कुछ दिन उनके फिक्स हो कम से कम, कि इस्कॉन विश्व से शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जो प्रस्थापित केंद्र है, मंदिर है, नामहट है, वहां पर भक्तों के सन्निधि में कार्यक्रम में भाग लिया जाए। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भी जब भजन क्रिया के विषय में बताए तो वहां पे विशेष शब्द का प्रयोग किया गया, साधु संगे भजन क्रिया। भजन क्रिया फलान्वित होती है विश्व से। अभी तो हमारा सौभाग्य है हम सभी का कि आप जिस किस स्थान पे आप भले ही न जाए, गुरु महाराज आपके पास पहुंच रहे हैं। तो लगभग सभी को टेम्पल प्रोग्राम जितना ही लाभ मिल रहा है, ये कई गृहस्थ भक्त भी अपना अनुभव बताए हैं कि ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल मंदिर में रहते हैं। अभी जूम टेम्पल आपके घर में पहुंच चुका है, तो वो एक अच्छी बात है। परंतु साथ में पहले मुझे स्मरण है आज भी कि लगभग 25 साल पहले जब हम शुरुआत में ज्वाइन हुए थे इस्कॉन में, तब कल्चर रहता था कि भक्तों के बीच में बैठ के जप करने बहुत अच्छा लगता था। कोई भी सीनियर भक्त आते थे, गुरु महाराज आते थे, कोई वरिष्ठ वैष्णव, चारों तरफ से जैसे कोई फूल को भ्रमर चारों तरफ से घेर लेते हैं, वैसे सभी भक्त मिलकर झुंड में वहां पर जप करते थे। अभी एक कल्चर आ गया, उसको बोलते हैं हम आइलैंड कल्चर। सब अलग अलग अपना, सभी समझते हैं कि कोई हरिदास ठाकुर है जो अलग अलग कमरे में बैठ जाते हैं, अलग अलग कोने में बैठकर नाम जप करते हैं।
तो आवश्यक यह है कि प्रयास किया जाए कि कुछ दिन जो हो, अगर डेली हो सके तो अच्छा है कि अगर आप यू कैन इस्कॉन में आप डेली मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें तो बहुत अच्छा है मंदिरों में, क्योंकि अलग प्रभाव है वो, कि उस स्थान का एक प्रभाव रहता है कि वहां पर नियमित रूप से भगवान की सेवा हो रही है, स्वयं श्रील प्रभुपाद जी रहते हैं और पूरा दिन केवल और केवल आध्यात्मिक क्रिया होती है। घर में दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है, तो वाइब्रेशंस थोड़ा अंतर पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप एक स्थान पे नाम जप करें और अब नारद कुंड में जाकर जो कर रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से अनुभूति थोड़ी भिन्न रही होंगी। तो प्रयास करें कुछ दिन आप मंदिर में भी अगर भाग ले सके। हरे कृष्ण। आनंददायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. ज्यावेळेस आपण जपाला बसतो त्यावेळेस जर कोणी समजा मध्ये येऊन डिस्टर्ब करतं किंवा बोलतं त्यावेळेस काय केलं पाहिजे, किंवा फोन येतो कोणाचा? मराठीत सांगू की हिंदी में सांगा? हिंदीमध्ये सांगा प्रभूजी, कळतंय. माता जी का प्रश्न है कि जब हम नाम जप करते हैं उस समय यदि कुछ विक्षेप आता है, मतलब कोई डिस्टर्ब करता है, तो क्या करना चाहिए? इसीलिए पहली बात रिकमेंड अनुमोदित की जाती है कि सुबह के समय में आप करना चाहिए। सुबह के समय में कोई डिस्टर्ब करने की संभावना, सुबह 5 बजे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, 6 बजे। तो प्रयास ये हो कि प्रातः काल में ही जप हो, मतलब आपका एक समय निर्धारित होना चाहिए। आप जब जप करते तो एक समय एक निर्धारित हो, स्थान निर्धारित हो, और वो अपने जितने आपके जितने जो परिचित उनको पता हो कि इस समय ये नाम जप भी करते हैं, तो फिर संभावना कम है कि बाहरी रूप से कोई डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्बेंस जनरली उसी समय होता है जब आपका नाम जप का समय अनिश्चित होता है, जब समय मिलेगा तब जप करेंगे, ऐसा विचार हो तो फिर थोड़ी समस्या आ सकती है। ठीक है। अंकित मिश्रा जी, अनम्यूट करके आपका प्रश्न पूछिए। कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर आज का क्लास रहा प्रभु जी। कितना अच्छा आपने बताया कि मतलब जीवन में हमें किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु जी, प्रश्न ये था, मतलब एकादशी आज का है या कल का है? कल का है। कल का है प्रभु जी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों से अनुरोध है केवल विषय संबंधित प्रश्न करें, ये नहीं कि प्रश्न पूछने के लिए है, जगह मिली है, स्थान मिला है तो कुछ भी और सभी प्रश्न पूछे जाए। प्लीज बी सेंसफुल बिफोर आस्किंग। विवस्वान प्रभु झांसी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए प्रभु जी प्रभु जी, जो आपने अभी जो बताया है 2 घंटे पहले, शयन के 2 घंटे पहले अपना बाहरी कार्य बंद कर देना चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा जान। आप झांसी में ब्रजभूमि प्रभु से मिलकर थोड़ा और पूछ सकते हैं जहां तक, क्योंकि पर्सनली लाइफ ऑब्जर्व, आप बोलेंगे बिजनेसमैन है, मेरा दुकान ही रात तक चलता है, तो एटलीस्ट हम कहेंगे कि जो साधना प्रगति का थोड़ा अपने लाइफ को मतलब लेट नाइट्स न रखें, क्योंकि उसका फिर साधना पे प्रभाव बहुत होता है। और जो मैंने कहा कि 2 घंटे, मतलब मान लीजिए 9 बजे अगर आप सो रहे हैं तो कम से कम 6-7 बजे तक आपका हो जाना चाहिए जो भी दुकान बिजनेस है। और उसके पश्चात जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी है, क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत हो गई कि लोग आखिरी समय तक व्हाट्सएप, फेसबुक्स और यूट्यूब, भले ही प्रवचन भी क्यों ना, परंतु ऐसे हमने सुना है कि सोने के पहले यूट्यूब वगैरह भी, क्योंकि एक बहिर्मुख वृत्ति होती है उसमें, अंतर्मुख जो वृत्ति, आप स्वयं नाम जप कर रहे हैं, आप स्वयं कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, उससे जो मन में जो सात्विकता आएंगी, वहां ये सब यंत्रों से नहीं होगा। वैसे मेडिकल साइंस के अनुसार भी हो सके तो, मैं शायद एक आर्टिकल है महात्मा प्रभु का स्लीप के ऊपर एक आर्टिकल था जो प्रातः काल में देख रहा था, उसको हम शेयर करेंगे भक्तों से अगर समय मिला तो उसमें मैं जो कह रहा था कि एटलीस्ट गैजेट, वैसे मेडिकल साइंस कहता है गैजेट्स आपके पास भी होने नहीं चाहिए सोते समय। वो जो डीप स्लीप जो मैं कह रहा था वो तुरंत प्रभावित हो जाती है, तो उनको थोड़ा यंत्रों को दूर रखने का मतलब संसार को भी पता होना चाहिए कि आप कुछ समय उपलब्ध नहीं रहते, और इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी ऑलवेज अवेलेबल। या आवश्यक नहीं, हमको लगता है कि हम अगर हम फोन नहीं उठाएंगे तो पहले दुनिया चल रही थी ना। तो ये बहुत कुछ चीजें जो विक्षेप हमारी बढ़ाने वाली जो क्रिया है, इनको थोड़ा हमको संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है। नटरानी राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप प्रभु धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि जो देहात्म बुद्धि के द्वारा आध्यात्मिक क्रिया करता है वो राख में घी डालने के समान है। तो प्रभु जी, जैसे कि अभी तो हम लोग इतना कर पा रहे हैं, जैसे कि जो भी आपने बताया, जैसे कि इच्छा है या अन्न, जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं उसमें जो हमारा संकल्प है, अध्ययन भी कर रहे हैं थोड़ा और सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारी गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देहात्म बुद्धि में अभी तक है ही। और तो हम क्या जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं तो उसको हम कैसे और फलीभूत कर सकते हैं, कैसे और अच्छे से कर सकते हैं? धन्यवाद माता जी। जो कहा, दो बातें हैं। आप जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो वास्तविक जो हम कोई शिक्षा प्राप्त होती है कि हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, वास्तविक हम भगवान को अर्पित नहीं करते, हम गुरु को अर्पित करते हैं और गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान तक पहुंचाए। तो विशेष रूप से अभी जितनी भक्ति में क्रिया है उसमें सदैव गुरु वैष्णव को अर्पण करने की भावना हो कि हम गुरु वैष्णव को अर्पण करें। गुरु है जो हमारी सेवा को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात, कैसे इससे मुक्त हो, तो उसमें विशेष रूप से जैसे हम भूत शुद्धि आदि हमारे सच्चिदानंद प्रभु सिखलाते हैं, मैं तुच्छ अणु आत्मा भगवान श्री कृष्ण नित्यदास हूँ। और जो भगवान की सेवा करते तो उस मंत्र को उच्चारण करते, ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्य ना शूद्र, कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि नहीं, ब्रह्मचारी ग्रस्त नहीं हूँ, पुरुष स्त्री नहीं हूँ। तो ये प्रार्थनाओं को कह सकते हैं। प्रार्थना कहने के साथ में विशेष से एक बात मैंने जो सुनी थी, कई पॉइंट्स तो ऐसे मिस हुए, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि प्रातः काल की जो साधना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए दिया गया है। तो आत्मा का साक्षात्कार होता कैसे? तो ब्रह्म मुहूर्त की साधना ब्रह्म साक्षात्कार करवाती है। अन्य शब्दों में, पूरे दिन अगर आप साधना कर रहे हैं, पूरे दिन की साधना में और प्रातः काल की साधना में क्या अंतर है? बोले पूरे दिन की साधना आपके कुछ पाप नष्ट कर सकती है, कुछ अनर्थों का नाश हो सकता है, परंतु भाव का उदय होना के लिए प्रातः काल की साधना आवश्यक है। व्यवहारिक अनुभव है कि आप दिन में कितना भी जप करते हैं, आप देखेंगे वो मूड नहीं आता जो सुबह के समय रहता है। और सुबह में आप देखेंगे, सुबह आप जब नाम जप करें, जो भक्त मंगला आरती करते हैं मंदिरों में, उनका अनुभव है कि आप मंगला आरती के बाद जब जप करते हैं, 5:15 से मान लीजिए आपने नाम जप प्रारंभ किया, तो 5:15 से 5:45 तक अलग इंटेंसिटी होती है नाम जप की। 5:45 के बाद देखा जाता है कुछ भक्तों को डुलकी आने लगती है, नींद आने लगती है, तो थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और 6:30-7 के बाद और थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। अब इसी में अनुभव और देखा जाए, जो और गंभीर भक्त होते हैं उनका अनुभव है कि 5:15 से 5:45, जैसे मैंने कहा कि इंटेंस एकदम, जब उस समय एकदम अलग ही मूड रहता है। और इसके मंगला आरती के पहले कुछ भक्त जप करते हैं 4 से 4:30 के समय में। उस समय जो जप होता है ना, एकदम जैसे क्या कहते हैं, मक्खन की तरह, एकदम दुरंतो एक्सप्रेस रहती है, कहीं ब्रेक ही नहीं लगता। उस समय का जप बहुत विशेष रहता है। और अब उसके आगे तो मैं कहूंगा नहीं, उससे 3 से 4 के समय जो जप होता है वो विशेष होता है। कभी कभी भक्त एकादशी आदि में, कुछ विशिष्ट तिथि में अगर उतना जल्दी करते होंगे, उस समय का अनुभव को अद्वितीय कहा गया। विशेष से जो साक्षात्कार आदि होते हैं, तो कहा जाता है उस समय जो साधना की जाती है वो साक्षात्कार की संभावना अधिक उस समय रहती है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब साधना भी कीजिए और साथ में जो सेवा कर रहे हैं, सेवाओं को गुरु को अर्पण करना है। ये मैं जब कर रहा हूँ, तो जो जब भी क्यों कर रहा हूँ, 16 वाला जब प्रभुपाद जी ने कहा है, गुरु महाराज को मैंने संकल्प लिया है गुरु महाराज के समक्ष, तो गुरु और प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए हम कर रहे हैं। तो वो जब फिर भगवान तक पहुंच रहा है। अगर प्रभुपाद और गुरु को भूल जाते हैं तो फिर वो जब नहीं पहुंचेंगे भगवान तक। वंशिका माता जी, वंशिका वर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जैसे बच्चे हैं तो जैसे स्कूल जाते हैं और सभी बच्चों को देखते हैं वो एकादशी व्रत भी रख लेते हैं, लेकिन फास्ट फूड की तरफ उनका कहना है कि आप हमारे मन को मार रहे हो। तो उसे कैसे हम मैनेज करें? हम घर में ही सब चीज बनाकर देते हैं, लेकिन कहते हैं वो बाहर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो केवल इस मॉर्निंग प्रोग्राम के विषय में अगर पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। आपके काउंसलर आपको बता सकते हैं उस विषय पर कि बच्चों। श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी क्लास अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया आपने। प्रभु जी, मंगला आरती करते हैं हम और रेगुलर होती है और रीडिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी जैसे ये देखते हैं कि कठोरता जीवन में बनी हुई है और वाणी में, व्यवहार में कैसे उसको और हम मृदु बना सकते हैं, बहुत नम्र हो सकते हैं।
मतलब सारा कार्यक्रम जो है मॉर्निंग सब होता है उसके बावजूद। हरे कृष्णा। माता जी ने कहा कि इतना कुछ करने का रिजल्ट दिख नहीं रहा, तो रिजल्ट तो यही है जिसको कहते हैं ना, व्हाट इज द साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन? द साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन इज मोर यू बिकम प्योर, मोर यू कैन रियलाइज द इम्प्यूरिटी। तो माता जी स्वयं कह रही है कि वाणी में कटुता उनको लग रही है, मतलब ये शुद्धिकरण का लक्षण एटलीस्ट पता तो चल गई बीमारी है क्या। ऐसे कई है जिनको लगता है कि और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन। तो अधिकांश भक्त तो ऐसे ही जिनको लगता है कुछ है ही नहीं हम में दोष। तो एटलीस्ट मॉर्निंग साधना की एक विशेषता है कि मॉर्निंग साधना जो करते हैं उनको अपनी गलतियां पकड़ में आती है कि हमसे कुछ गलत हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। तो ये एटलीस्ट आपको रियलाइज हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे कि दोष अनर्थ जो है आपको दिखने लगते हैं कि कल कुछ भी गलती अगर आपकी सुबह अच्छी साधना होती है, साधना का लक्षण क्या है? तो बोले कि कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तारे उपजाए भाव। तो उसके अर्थ में बताया जाता है कि कृष्ण नाम जो तुरंत भाव को उदित करता है। भाव उदित मतलब आंखों से अश्रु नहीं आते, आप अच्छी तरह से नाम जप करते हैं, आपसे थोड़ा भी डेविएशन, थोड़ी गलती होती है तो तुरंत आप पकड़ पाते हैं उसको। तो ठीक है, आपका जो कटुता अगर ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है तो वो धीरे धीरे क्रमशः वहां भी ठीक हो जाएगा। सत्यभामा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल है। 3 साल से कोई मेरा थोड़ा सा फिजिकल लिमिटेशंस मुझे आ गए हैं, इसलिए मैं मंदिर में नहीं जा सकती मंगल आरती के लिए। तो इसलिए मैंने 3 साल से ये किया है कि घर में मैं मायापुर के मंगल आरती अटेंड करती हूँ। और ये अच्छा है क्या और क्या करना चाहिए मुझे? जैसे मायापुर वृंदावन की आप मंगल आरती कर सकते हैं। मनुस्मृति में एक पढ़ रहा था, ऐसे दिया है कुछ स्वास्थ्य, जरावस्था, बाल्यावस्था कुछ बताई गई है। कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, स्मरण नहीं, मैं देखा था कुछ रेफरेंस था कि कुछ चीजें इसमें, इसका मतलब उठना नहीं है, परंतु मतलब आप बेड पर ही है, आप स्नान नहीं कर पा रहे, कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आवश्यक होता है, परंतु उस अवस्था में शायद नहीं कर पाते, तो भी कुछ बातों को वहां पे कंसेशन मिला है। सुंदरी लीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जब तो बहुत अधिक ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन सेवा में जब सेवा की बारी आती है तो तब हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? आपके लिए कह रहे कि आप किसी दूसरे को वही इंगित करके कह रहे हैं? हाँ प्रभु जी। स्वयं के लिए हो तो फिर सेवा करनी चाहिए ना। और दूसरों के लिए हम ये कहूंगा कि जनरली हम लेक्चर सुनते तो आवश्यक ये चीज है कि थोड़ा पर्सनल एप्लीकेशन पे ध्यान दिया जाए। कई बार क्या होता है, ज्ञान को हम दूसरों को देखने का एक चश्मा बना देते हैं, दूसरों को जज करने के लिए कि हाँ ऐसा सुना तो ये भक्त अगर स्टैंडर्ड वाला नहीं है तो फिर हम उसमें दोष बुद्धि आ जाती है। थोड़े सावधान रहना चाहिए। ज्ञान को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे यदि ज्ञान को आप दूसरों को जज करने का अगर माध्यम बना लेते हैं। तो माता जी ने कहा कि जब कर रहे हैं, बहुत अधिक जब कर रहे हैं तो सेवा से हिचकिचाहट होती है, तो पहले इच्छा पूर्वक सेवा नहीं होती है, पहले अनिच्छा पूर्वक ही सेवा होती है, जिसको वैधि भक्ति कहा जाता है। तो हिचकिचाहट हो, अच्छा लगे न लगे, परंतु फिर भी हमें सेवा करनी चाहिए। बिना सेवा के साधना साक्षात्कार प्रदान नहीं कर पाती है, तो करते रहिए। और यदि कोई दूसरे नहीं कर रहे तो अगर आप अधिकारी होंगे, मतलब आप गुरु है तो, या फिर आप उनके मार्गदर्शक है जो सेवा में हिचकिचाहट कर रहे हैं, तो उनको आप बता सकते हैं। अन्यों को जिनके लिए हमारा अधिकार नहीं, उन्हें हम कह नहीं सकते। साक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए, बोलते रहिए। प्रभु जी, मेरा ये था क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि डे स्लीप का वो है, तो मेरा भी बहुत डे स्लीप का प्रॉब्लम रहता है मेरे को। मतलब मैं सुबह अगर उठ जाती हूँ तो उसके बाद माला खत्म करने के बाद ही मेरे को रहता है दोबारा सो जाओ। तो प्रभु, और फिर मैं सो जाती हूँ तो बस 1-2 घंटा तक सो ही जाती हूँ। तो उसको रोकने के लिए, जैसे आपने भी टिप्स बताया कि जल्दी सोने के लिए, तो डे स्लीप को रोकने के लिए भी कुछ टिप्स बता दीजिए। डे स्लीप मतलब विश्व से उसे कहा जाता है तमोगुण। तमोगुण को परास्त करने के लिए रजोगुण होना चाहिए। जब नींद आती है तो कहा जाता है कि डू सम फिजिकल सर्विसेज,
क्योंकि अब नींद आ रही है, आप भागवतम खोल के पढ़ना शुरू करेंगे तो और ज्यादा नींद आएगी आपको, तो अच्छी साउंड स्लीप आ जाएगी भागवतम का स्पर्श करने मात्र से। तो अच्छा है, मैं एक भक्त से सुना था विश्व से, हमारे एक वरिष्ठ वैष्णव थे, वे कहे कि हमें तामसिकता शरीर में होती है तो फिर दिन में नींद आ जाती है, तो शुरुआत में क्या किया जाए, बोले तमोगुण को रजोगुण से परिवर्तित करें, सतोगुण एकदम नहीं आएगा, तो बोले कि सेवा उस समय अधिक करना चाहिए। विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि नींद से बिना लड़ाई किए आप नींद पर विजय कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप बोले अचानक एक दिन चमत्कार होगा और मैं एकदम गुड़ाकेश बन जाऊंगा और निद्राहार विहार का आदि विजय, तो ऐसा नहीं होता है। नींद से जितना होता है, रात्रि की हो दिन की हो, क्योंकि जैसे अब अधिक सोते तो शरीर तमोगुण रहता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण रहता है। जैसे रात्रि में भी कोई सोता है तो अगर 7-8 घंटे सो रहा है, जैसे शरीर और उम्र के हिसाब से भी भिन्न भिन्न रहता है, परंतु जनरल जो मैंने सुना है वो 7-8 घंटे को तमोगुण शरीर की तामसिकता अधिक होती है तो उसको अधिक नींद लगती है, तो 7-8 घंटे की नींद चाहिए। मैं वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरल में 7-8 घंटे तमोगुण कहा गया है और 6 घंटे रजोगुण कहा गया है, 5 घंटा का नींद को सतोगुण कहा गया। और इससे कम अगर हो जाता है जिनका, अरे स्वाभाविक होना, जैसे कृत्रिम रूप से आप नहीं कर सकते, विशुद्ध रूप से जब गुरु वैष्णव कृपा होती है, आपकी साधना होने लगे, आप अगर शरीर में सात्विकता अधिक आती है तो धीरे धीरे हो जाता है कि कभी 4 घंटे, ऐसे कई वक्त जो 4 घंटे नींद में भी उनका होता है, तो फिर वो शुद्ध सत्व मतलब सात्विकता बढ़ने लगी है। तो दिन की नींद के लिए कहा जाता है कि ट्राई टू फाइट विद द स्लीप, कि एग्जैक्टली आपको पता होता है कि कुछ लोग प्रसाद लेते बराबर नींद आती है, तो प्रसाद के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे लिया जाए, वो एक अलग से एक प्रेजेंटेशन ही है। भोजन से भजन, ऐसा भोजन होना चाहिए जो आपके भजन को मल्टीप्लाई करने लगे, उसमें अधिक चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग पहले सुबह में मंगला आरती जाते हो, उसके बाद महाराज जी के साथ जपा टॉक एंड सेशन होता है, लेकिन अभी जैसे बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे प्रभु जी, तो उनको भी रेडी करके स्कूल भेजना है 7 बजे तक, तो कहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहिए? मंगला आरती छोड़ना चाहिए या सेशन भी नहीं छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि महाराज जी का मिल रहा है आप जो काउंसलर कोई होंगे उनसे आप थोड़ा व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं इस बात को। पर्सनल केस का जो हम इधर से तुरंत बता नहीं पाएंगे, एटलीस्ट जब तो होना ही चाहिए, प्रातः काल का जो जब पूरा होना चाहिए। जनरल कुछ भक्त है ऐसा एकदम वो रिकमेंड नहीं करते, वो हमारे कुछ भक्त इस बात को स्वीकार नहीं करते, कुछ भक्त जो है वीडियो ऑफ करके अपना घर का काम करते करते गुरु महाराज का जपा टॉक सुनते हैं। तो हालांकि वो उतना आदर्श यहाँ पे हम देख रहे हैं, कई गृहस्थ भक्त जो पूरे नोटबुक पेन लेकर जो लिख रहे हैं, वो अच्छा आदर्श है, परंतु देश काल परिस्थिति अनुसार संभव न हो, हमसे गुरु महाराज को सुनना तो आवश्यक है, सुन सकते हैं, और फिर आपके जो भी पर्सनल गाइड होंगे उनसे आप मार्गदर्शन लेंगे। सुंदरी गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई प्रभु जी, जैसे घर की मंगला आरती अगर जैसे 3 बजे उठ जाते हैं, 3:15 3:30 तक होके फिर हम मंदिर चले जाते हैं 4:10 तक, जैसे तो मंगला आरती पहले कर सकते हैं या 4:30 बजे के बाद ही होती है घर की भी? नहीं, आप कर सकते हैं, घर की मंगला आरती में उतना स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, आप अपना एक निर्धारित करके उसके अनुसार कर सकते हैं। विमल कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपके क्लास में बहुत प्रश्नों का उत्तर मिला है, लेकिन कई प्रश्न खड़े भी हो गए प्रभु जी। जैसे मेरा घर मंदिर से 12 किलोमीटर के पे स्थित है, और कुछ कोविड की वजह से जो मंगल आरती के प्रोग्राम में ज्यादा रेगुलर अटेंड करता था वो बहुत कम हो गए, अब फिर शुरू करेंगे, अब कोविड की स्थिति थोड़ी बेटर हो गई है। तो और ये भी लगता है कि यदि 50 मिनट आने जाने में लग गए ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 25 मिनट जाने के, और फिर तो जब ब्रह्म मुहूर्त पास हो वापस आते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाता है, बट फिर 25-30 मिनट का समय ट्रेवलिंग में लग जाता है 4 बजे के करीब, तो वो भी थोड़ा लगता है कि क्या शायद बड़ा मूल्यवान समय ट्रेवलिंग में जा रहा है। तो अभी प्रयत्न करते हैं कि उठ के 3:45-4 बजे मंगल आरती घर में करते हैं, और 16 राउंड तो मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ कि गुरु महाराज के साथ
करूं, लेकिन कुछ 2-3 साल पहले गुरु महाराज की वेलबींग के लिए कुछ एडिशनल राउंड्स का भी मैंने संकल्प लिया। तो वो जो एडिशनल राउंड्स में कुछ राउंड मेरे 6:45 बजे तक नहीं होते, तो वो मैं फिर मतलब बाद में करता हूँ। सवेरे कोशिश करता हूँ कि 12 बजे से पहले, 1 बजे से पहले करता हूँ। तो कुछ इस तरह की स्थिति है कि क्या मैं ठीक दिशा में चल रहा हूँ, क्या मेरा सोच ठीक है। ऐसे मैं काउंसलर से भी डिस्कस करूंगा, मेरे काउंसलर ग्रेस राधाकुंड प्रभु है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने काफी इस सब्जेक्ट में स्टडी किया है तो मैं आपसे चाहता हूँ थोड़ा मार्गदर्शन करें। ठीक है, आप जो भी कहे आप राधाकुंड प्रभु को गाइड कर सकते हैं कि आप साधना कर रहे हैं, अधिक नाम जप कर रहे हो, यथासंभव शरीर और स्वास्थ्य और स्थान के अनुसार जितना हम अगर मंदिरों में मंगला आरती अटेंड कर सके, क्योंकि नाम हालांकि लग रहा है कि समय थोड़ा जा रहा है हमारा प्रातः काल का, परंतु घर में नाम जप जो हो रहा है और निश्चित रूप से मंदिर की एक अलग वाइब्रेशन होती है, तो उसका लाभ तो अवश्य लेना ही चाहिए। कुछ समय, कुछ दिन के लिए, या डेली हो सके अच्छा है, या कुछ दिन तो अवश्य करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शेष प्रभु का। और काफी भक्तों ने या कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे और प्रभु जी एक कांस्टेंट आंसर दे रहे थे जिसपे आपको या हम सभी को ध्यान देना आवश्यक है। और वो है कि हमारे जो गाइड है, मेंटर है, काउंसलर है, उनसे पूछना चाहिए या उनसे पूछ सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम और भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं, या उनके मार्गदर्शन से हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी भी कुछ भक्त हैंड रेज कर ही रहे हैं। अगर हैंड रेजिंग सेशन जारी रखा तो शायद ये मैराथन ही हो जाएगा, कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि किसी भक्त का उत्तर सुन के किसी भक्त के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर उनका उत्तर सुन के और किसी भक्त के मन में प्रश्न होता है। सो बेसिकली वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिवोटीज। सो कभी कभी सरल चीजें भी हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। कुछ सरलता से बताया गया फिर भी उसमें बहुत सारे विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं हम। तो जो व्यक्तिगत पर्सनल लेवल के प्रश्न है वो आप अपने काउंसलर्स, अपने गाइड, अपने मंदिर के वरिष्ठ भक्तों से भी पूछ सकते हैं। तो अभी तो समय की पाबंदी है और समय समाप्त होकर भी काफी ओवर टाइम जैसे हो चुका है। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। और जो वैसे एक जगह मैं भी सुन रहा था, जस्ट कमेंट अ बिट, कि कई बार भक्त कैसे कहे, थोड़ा कहने के लिए हैवी रहता है या जाता है, लेकिन अत्याहार के एक्सप्लेनेशन में बताया जाता है कि सुनने में भी किस प्रकार से हम अत्याहार करते हैं। हम सभी के लेक्चर सुनते हैं, जब हो गया उसके बाद से रात तक हम दिन भर केवल सुनते रहते हैं, और ये भाव रहता है कि नहीं ये लेक्चर, ये तो ये डिवोटी या ये स्पीकर का लेक्चर है, सेलिब्रिटी स्पीकर है या बड़े स्पीकर है, इनका तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो केवल सुनते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन की बात है वो बस कहीं खो ही जाती है। तो प्रभु जी ने काफी हमें ज्ञान दिया है और काफी चीजें बताई है, तो उसे अप्लाई करना भी उतना ही आवश्यक है या शायद उससे भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम जितना सुने हैं उसे जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कोई ज्यादा उसका असर नहीं है या कोई उसका परिणाम नहीं आएगा। तो इसी भाव के साथ या इसी चेतना के साथ पुनः प्रभु जी को आभार व्यक्त करते हुए हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। और कल एकादशी के अति पावन तिथि पर हमें श्री गुरु महाराज का निजी संग सानिध्य उनके जपा टॉक के माध्यम में भी प्राप्त होगा। कल विजय एकादशी है, तो कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, श्रीमान अनंत शेष प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।